Very good morning to all the students. Today we will be continuing our lecture series on data frames, data handling part 1. This is our third lecture of the same series today and we will be continuing from our previous session. In the previous session, I hope you remember we have already seen how to create a series and various work on the series like accessing the elements of the series and then how to change the values within a series and so many other attributes of the series. Today, I am going to continue over the data frames. And when I continue, I always say to keep your notes, copy and pen ready. I hope you all are ready. We continue with our data frames and today we will be working with data frames. So coming to the PPT, here is our PPT ready. I think just a minute, I'll just click on the PPT. It is here, open, and let me see, it's not showing to you people, so I'm making it show. Yes, it has come. Fine. We start our PPT. We start our learning with this PPT. Before I actually commence, I like to thank our KVS RO Jabalpur who gave me the chance, the authorities. I am thankful that I am able to meet my students through this virtual mode. In the COVID-19 pandemic, I always say neither the teaching can stop nor the learning. And so has been proved by our KVS RO Jabalpur. By a good guidance, we all teachers are able to guide, to teach the students the actual curriculum, the latest curriculum, and our students are following it. So thank you authorities and thank you students that you all are regular. Today we will do data frames with various other options proceeding further from the previous session. I will keep on showing you that this portion of the syllabus is of how many marks? How many marks? 30 marks. Okay. So these 30 marks are important for my students. I don't want you people to miss any point here. This is the detailed syllabus and the test I gave you previously. I gave you the test. How many of you have done the test? A slip test. It was meant to be done day before yesterday. I believe so many of you have tried and you would have got the answers also. Today I am going to show the solution. The solutions are already given in the next slide. If you have tried, you would have come to these solutions. Okay. So the first answer was C and D 200, 300. This I think I solved for you there. Second was a BDF with 100, 300 and 500. The indexes BDF. Here A, B, C, D, E, F. It's visible to you all. You can always match with your questions and get the answer. Self-explanatory one, क्योंकि इससे related सारे features हमने अपनी कल की previous classes में की थी. Now coming to the data frames. Okay, this is the point of series. ये series का example है. यहाँ पर हम जब डेटा फ्रेम्स की बात करते हैं तो ये होमोजेनस नहीं होकर के क्या हो जाता है डेटा फ्रेम्स के कंडीशन में इट इज हेट्रोजेनस. ओके. साइज म्यूटेबल, यहाँ पर ये साइज म्यूटेबल हो जाता है और वैल्यू म्यूटेबल तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है. सो फॉर सीरीज इट इज दिस एंड फॉर डेटा फ्रेम्स इट इज हेट्रोजेनस एंड देन साइज म्यूटेबल. Immutable नहीं कह रहे हैं, mutable. That means you can change the size also. And then value mutable. So in data frames you have these features. In series you have these features. Okay. We have already seen creating and working on series. Then we have seen how to create data frames using the series, nested dictionaries and NumPy array also. Now today what we are going to see is these topics: display of the data frames, iteration, various operations of adding or deleting or selecting the columns, head and tail function and
indexing using labels, etc. So in this PPT part, this is the thing of syllabus. Okay, I think I forgot to show you the solution portion. I'm coming back to the previous slide. The solution is here. I was saying but could not show you by a mistake of OBS, my streaming software. ये सॉल्यूशन आपको प्रीवियस स्लाइड में विजिबल था, एक बार और आपके लिए शो कर रहे हैं ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सकें। और जैसा कि हम अभी कह रहे थे, हमने सीरीज में देखा था कि सीरीज डेटा होमोजेनस, साइज इम्यूटेबल और डेटा म्यूटेबल होता है। उसी तरह डेटा फ्रेम्स में हेट्रोजेनस डेटा होता है, साइज म्यूटेबल वैल्यूज होती हैं और साइज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है और वैल्यू म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है डेटा फ्रेम। जो हमें आज पढ़ना है, व्हाट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इज इटरेशन एंड ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स। We are going to add, select and delete the rows. We are going to see the renaming of the columns, head and tail, the functions and few other things. We have seen in our previous session कैसे हम 2D numpy arrays से data frame बना सकते हैं, series से बना सकते हैं, nested dictionary से बना सकते हैं। आज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कैसे हम pandas पांडास में CSV फाइल्स को यूज करते हुए डेटा फ्रेम्स बना सकते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए, वी मस्ट नो व्हाट इज दिस pandas. ओके, सो फॉर pandas आई वांटेड टू शो यू अ notepad. If notepad is available, let me just check it. Yes, it is here. See this particular file, name, comma, class, comma, age, comma, marks, and then I am having a डेटा। इस डेटा को हम दोबारा लिख करके आपको बता रहे हैं कि CSV फाइल कैसी दिखती है। सो सपोज आई डोंट हैव दिस, ओके, अ फाइल, अ वेरी सिंपल फाइल। CSV फाइल बहुत ही लाइट फाइल्स होती हैं। CSV फाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं और इन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को हम डेटा फ्रेम्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसी वैल्यू को हम दूसरे तरीके से लिखें, इंडेक्सेस भी मिल जाए इन्हें, तो ये एक डेटा फ्रेम बन जाता है। सो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, दैट मीन्स CSV फाइल आर द बेस्ट फाइल टू कन्वर्ट इनटू डेटा फ्रेम्स। और ज़्यादातर हमारे एप्लीकेशंस को हम CSV फॉर्म में सेव करते हैं, इसलिए वहाँ से डेटा लेने या रखने के लिए हमें डेटा फ्रेम्स का CSV से इंटरेक्शन सीखना चाहिए। सिमिलरली हम टेक्स्ट फाइल में भी बहुत डेटा रखते हैं, तो टेक्स्ट फाइल से भी हम transfer of data from files to data frame and data frame to files. We must know that. So let me come to the PPT. Okay, so this is the example of code for getting data frame from the CSV file. Just see here, as usual हमें pandas को import करना होगा। उसके बाद हमें फिर pd.read.csv फाइल का नाम प्रॉपर एक्सटेंशन के साथ, और अगर फाइल उसी फोल्डर में नहीं है तो प्रॉपर पाथ ऑल्सो। पाथ मीन्स उसका ड्राइव लोकेशन, प्रॉपर URL जो होता है वो देना होगा। ओके, सो pd.read_csv फॉर टेक्स्ट फाइल। सेपरेटर आप यहाँ बता सकते हैं, स्पेस अगर सेपरेटर है तो कीप अ स्पेस, अगर कॉमा सेपरेटर है तो मेक अ कॉमा। सिमिलरली फॉर CSV, अगर आप CSV को रीड करना चाह रहे हैं तो यू डोंट रिक्वायर टू गिव एन एक्सटेंशन ऑल्सो, जरूरी नहीं है। इफ यू गिव, वेल एंड गुड। CSV में हमारा डेलिमीटर बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर फाइल इनटू सम डेटा फ्रेम। ओके, डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स हमने पिछले लेक्चर में, पिछले सीरीज में देखा था। इंडेक्स, कॉलम, एक्सेस, डी टाइप्स, साइज, शेप, वैल्यूज, एम्प्टी एंड ट्रांसपोज। ये एग्जाम्पल देखा था हमने। We have seen that access gives you both the access, यानी कि हमारा ये जो रो इंडेक्सेस है और कॉलम के लेबल्स हैं, ये दोनों हमारे एक्सेस हैं। दो एक्सेस होते हैं डेटा फ्रेम्स के पास, 0 and 1। इसके 0 and 1 दो एक्सेस होते हैं, इसलिए ये 2 डायमेंशंस हैं। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमें साइज एट्रीब्यूट से मिलता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उनको कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, उतने वैल्यूज मिल जाते हैं। D type attribute shows the attribute of
all the columns of any data frame. Now ये हमारे वही एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने देखा था, हमने ट्रांसपोज भी देखा था. df1.empty ये बताता है कि हमारा डेटा फ्रेम empty है क्या, अगर है तो true, otherwise false. Transpose gives you the transpose of values, that means row exchanged with column and columns exchanged with the row. Now डेटा फ्रेम्स एलिमेंट को आज एक्सेस करना हम सीखेंगे, ये हमारा आज का नया टॉपिक है. इस नए टॉपिक में हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा फ्रेम्स को वैल्यू, कॉलम और रोज की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट मेथड, दैट इज बाय यूजिंग अ रो नेम और रो इंडेक्स नंबर. आइदर रो का लेबल यूज करें या रो का इंडेक्स. फॉर दैट आई हैव टेकन वन एग्जांपल. ये डेटा फ्रेम है. दिस डेटा फ्रेम हैज बीन मेड यूजिंग अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. किसी डिक्शनरी की हेल्प से बनाया. डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने कन्वर्ट किया, एंड दिस डेटा फ्रेम इज रेडी. इट हैज द इंडेक्सेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, column headings, employee ID, employee name and department. Now suppose I want to access a particular value, individual value access करना है तो कैसे करेंगे? I have the syntax here. You can see this portion. डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, कॉलम का नाम लिखेंगे और रो का नाम या रो का इंडेक्स. दिस एग्जाम्पल, emp name square bracket third. So emp name is here, third is here, and यहाँ पर हम जिस जगह पे पहुंच रहे हैं that is this output. Similarly, emp name 2. So emp name means column का नाम, and 0, 1 and 2. This is our second row level. तो पहले कॉलम देते हैं फिर रो देते हैं. इस केस में कॉलम and then row in the square brackets, remember. Okay? So इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करने का एक तरीका ये सीखा आपने. फाइन, आपने नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट इज अनदर मेथड यूजिंग द एट एंड आई एट एट्रीब्यूट. उसी डेटा फ्रेम को हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं. एट एट्रीब्यूट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन गिविंग बोथ द आर्ग्यूमेंट्स इन स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम देते हैं तो पहले हम रो का नाम देते हैं, फिर हम कॉलम का नाम देते हैं. पहले रो का नाम सेपरेटेड बाय कॉमा, और जब हम एट एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम क्या देते हैं, नेम्स. और जब हम आई ऐड कर रहे हैं तो हमेशा हमें क्या देना है, इंडेक्स, बिकॉज आई मीन्स इंडेक्स. सो जब हम आई ऐड यूज करेंगे तो वी हैव टू गिव द इंडेक्स. ओके. So in this example, second and emp name. So second is here, emp name is here. तो हमारे पास जो सेल अवेलेबल हो रही है इंडिविजुअल वैल्यू दैट इज अतुल. 2 and 2, तो हमारा 0, 1 and 2, दैट मीन्स हम थर्ड रो में हैं. यहाँ पर 0, 1 and 2, दैट मीन्स डिपार्टमेंट. तो जिस पोजीशन पर हम पहुंचे दैट इज HR. तो दिस इज द आंसर. If you will pass only one argument, this will generate error. तो हमें दोनों आर्ग्यूमेंट्स देना जरूरी है, पहले रो फिर कॉलम. प्रीवियस वाले एग्जांपल में पहले कॉलम फिर रो. ध्यान से देखिए, पहले कॉलम फिर रो. यहाँ पर एट और आई एट एट्रीब्यूट में पहले रो फिर कॉलम. द नेक्स्ट एग्जांपल, आई वांट टू गेट अ सिंगल कॉलम. हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. एग्जांपल में सेम डेटा फ्रेम लिया है, दो ऑप्शंस हैं. In square bracket, simply give the column name, and in dot operator, give the column name without any square bracket. In both the ways, this example and this example, I am getting the emp name column, this whole column as an output. I hope you all are able to match it. एक और एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने के लिए. मल्टीपल कॉलम एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक कॉलम्स की लिस्ट. यू नो द लिस्ट आई थिंक. सो लिस्ट में हमें जो भी कॉलम्स लेने हैं उन कॉलम्स का नाम दे देना है. C1, C2, C3, सपोज ये हमारे अलग अलग कॉलम हैं. जितने चाहे उतने कॉलम्स के आप एज अ लिस्ट नेम दे दीजिए, वो कॉलम्स हमारे आउटपुट में आ जाएंगे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. एम्प नेम और डिपार्टमेंट दो कॉलम्स को एज अ लिस्ट दिया है DF के साथ. यहाँ डॉट ऑपरेटर नहीं यूज कर रहे हैं जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल.
मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करना। वी आर ट्राइंग टू लर्न एज मैनी एज वेज फॉर एक्सेसिंग और रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम। तो अभी हमने 3 तरीके देख लिए, इनफैक्ट मल्टीपल तरीके हो चुके हैं क्योंकि आई एट भी देखा हमने, कॉलम और रो लेवल को यूज करना देखा, एंड देन मल्टीपल कॉलम्स देखा। नाउ हाउ टू एक्सेस द रोज। रोज को एक्सेस करना है डायरेक्टली, अभी कॉलम के रेफरेंस में एक्सेस कर रहे थे हम, रोज के रेफरेंस में होगा तो LOC एंड इंडेक्स लोकेशन ILOC फंक्शन हमें हेल्प करने वाले हैं। इन LOC मेथड व्हाट वी डू इज वी कैन एक्सेस अ सिंगल रो और मल्टीपल रो बाय नेम, and here we can access single row or multiple row by row index number. Just see the example. Dot LOC लिस्ट के फॉर्म में अभी सिंगल दिया है, यहाँ पर एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं आप कॉलम्स के नेम, एंड दिस टाइम LOC मेथड इज गोइंग टू गिव यू द आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर रो। तो ये रो है हमारी, सेकेंड रो ये है जिसके एलिमेंट्स थे 3rd, E03, रीना एंड HR, और इसी रो को इंडेक्स यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम रो का इंडेक्स देंगे 2, एंड रिमेंबर 2 इज द थर्ड रो। कैसे थर्ड रो है? 0, 1 एंड 2, सो 2 इज थर्ड रो, जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था। अगर आपको डेटा फ्रेम याद है, नहीं याद है तो आप देखिए 0, 1 एंड 2, सो ये थर्ड रो पूरी हमारी एज एन आउटपुट आनी चाहिए वहां पर। सो लेट अस सी, यस, थर्ड E03, रीना एंड HR इज कमिंग। तो LOC में हम और भी तरीके यूज कर सकते हैं जो हमने सीखे थे वहां पर इन स्लाइसिंग। जस्ट सी हियर, स्टार्ट रो, कॉमा एंड रो, कॉमा स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम। ठीक है, ये भी एक तरीका है। यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, हम स्लाइसिंग वाले तरीके से हम नोटपैड की हेल्प से आपको दिखाना चाहेंगे। लेट मी जस्ट शो यू थ्रू द नोटपैड। Suppose I have a data frame, and in that data frame the name of data frame is df dot, and I want to use the LOC method। ठीक है, LOC method में हम कैसे यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम को? So LOC, make it small letter please, okay, LOC, and then in LOC I have to give the indexes। तो indexes हम कैसे देते हैं यहाँ पर? स्टार्ट रो एंड रो, ये जो फॉर्म है वो पूरा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। हियर यू हैव 2 पोर्शंस, वन इज रो स्टार्ट कॉलम, आई एम राइटिंग इट रो स्टार्ट नंबर एंड रो एंड नंबर, कॉमा कॉलम स्टार्ट नंबर एंड कॉलम एंड नंबर। यहाँ पर आपने जैसे देखा आपके पास में कितनी सारी चीजें हैं, रो कहाँ से कहाँ तक शुरू करनी है और कॉलम कहाँ से कहाँ तक शुरू करना है। यस, दिस इज द वे यू कैन गिव द LOC मेथड ऑल्सो। यहाँ पर आप मल्टीपल रोज और सेलेक्टेड मल्टीपल कॉलम्स दिखा सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप स्लाइसिंग में दिखा रहे थे। स्लाइसिंग में आपने एरे स्लाइसिंग किया हुआ है, 2D एरे इफ यू हैव डन, तो 2D एरे के ही जैसा स्लाइसिंग है। I can show you few examples. Still coming back to the PPT. Coming to the PPT, yes, it is here. यहाँ पर इसी तरह ILOC में आप स्टार्ट रो नंबर देंगे और कॉलम नंबर। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये याद रखेंगे। जब आप LOC में हैं तो यहाँ पर आपको रो का नाम देना होता है या लेबल देना होता है रो या कॉलम का। ठीक है, जब आप LOC में ILOC फंक्शन में हैं तो आपको हमेशा इंडेक्स ही देना है। You have to give the index. I'll show you few examples of this particular thing. शायद इस PPT में नहीं है तो I like to open another PPT. In the end I will show you. अभी इसे कंटिन्यू करते हैं। Come back to the PPT. तो यहाँ पर बिल्कुल स्लाइसिंग की तरह आप दे सकते हैं। ILOC फंक्शन में आप इंडेक्स देंगे। See this example. Yes, I had few examples. Example of slicing. देखिए LOC मेथड में आपने केवल कोलन लगाया, that means it will fetch all the rows and columns of the data frame, सारे का सारा फर्स्ट से लेकर एंड तक ये रो को बता रहा है, और सेकेंड वन इज कॉलम। तो कॉलम में जब हमने कुछ भी नहीं दिया, इट विल फेच ऑल द कॉलम्स।
तो ऑल द रो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट और आगे जितनी भी हैं प्लस ऑल द कॉलम्स. See this example. Starting from first row and only up to third row. And here all the columns. Secondly, starting from second row up to third row only and all the columns. Then all the rows and columns only from employee name. Equivalent iLog function दिया हुआ है. याद रखने वाली बात यह है कि जब हम नाम दे रहे हैं तो यहाँ पर एंड नेम इंक्लूड हो रहा है, बट व्हेन वी गिव द इंडेक्स, एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता. जैसा कि हमने सीरीज में देखा था, अगर हमने 1 से लेके 3 तक दिया है तो जो चीज़ें वहाँ एक्सेस होंगी दैट विल बी ओनली 1 and 2. थर्ड इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड. तो बस यही ध्यान यहाँ पर भी रखना है. फ्यू मोर एग्जाम्पल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वंस आई थिंक. Fetch all the row क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, and fetch columns up to the emp name, यानी शुरू से लेके emp name तक. सेकेंड एंड थर्ड कॉलम emp name से लेके डिपार्टमेंट तक. So in this way we have seen LOC and ILOC function, very important one to access the data frames. Now what else we require to see is indexing in the boolean form, boolean indexing. boolean indexing क्या है ये देखते हैं हम लोग. सपोज हमारी कोई डिक्शनरी है जिसे हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इंडेक्स हमने जो दिया है दैट इज व्हाट, द boolean index, true false true false. ओके, द इंडेक्स हैज बीन गिवन इन द boolean form. तो जो आउटपुट है हमारे डेटा फ्रेम का कैसा आएगा, कॉलम नेम्स. कॉलम नेम्स क्या बनते हैं, हमारी डिक्शनरी की कीज. सो नेम, डिग्री एंड स्कोर. Index we have given here true false, so it is here. Now how to do the boolean indexing? Come to the next slide. Same example is here. Boolean indexing जब हमने किया तो हमने कहा df.loc true. I am not giving any row, any column. I want to see all the data values which are true. तो true के लिए इसने वो rows दे दी कौन सी, जो true थी. See the output here. First row Aparna and the third row Sudhir. They are the true values and they have come in the output. So this is the example of Boolean indexing which is given in your syllabus. So I hope you understand Boolean indexing means index हमारे Boolean form में है तो हम LOC method की help से उसे अगर हम indexing के through data को देखना चाहें that is called as Boolean indexing. How to add a column in data frame? You can add as many as columns in the data frame because it is size mutable also. So just think there is a data frame, एक data frame है जिसमें कि हमारे पास data frame के ये arrays हैं, index है, column है. हमने data frame को कैसे बनाया, data frame में ये values दी, ये हमारे index labels हैं और ये हमारा column label है. Now how do it looks like? बहुत सारे कमांड दे रहे हैं, फिर आउटपुट हम आपको इकट्ठे दिखाएंगे. यहाँ पर हमने एक कॉलम और डालना चाहा है रिजल्ट, तो आई हैव टू गिव इन द स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में हमें जो भी नया कॉलम बनाना है, आई वांट टू शो इन द नोटपैड ऑल्सो वट एवर द कॉलम यू वांट टू मेक. सो जस्ट सी दिस इज माई डेटा फ्रेम. इसमें हमें जो भी न्यू कॉलम बनाना है, न्यू कॉलम, उसका आप नाम दे दीजिए. And then in the particular comma separated जो भी इसकी वैल्यूज आ रही हैं, जो ज़रूरत की वैल्यूज हैं आपको नए कॉलम में देनी है, वो वैल्यूज आप उसमें इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और यस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यू कैन ऑलवेज एंटर. तो न्यू कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पर नए कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में देना है. इट विल एड द न्यू कॉलम एंड इफ यू डू नॉट गिव एनी वैल्यू व्हाट विल हैपन, वो नए कॉलम में सिंपली NaN वैल्यू के साथ वैल्यूज इनपुट कर देगा. मोर ओवर सभी रोज में अगर आप दूसरे तरीके से आप आई कैन शो यू हाउ टू एंटर द वैल्यू. द मेथड 2 इज दिस, गिव ऑल द रोज, इवन इफ यू डोंट गिव, वो सभी रोज में ऐड होना है. देन द न्यू कॉलम नेम
एंड द न्यू कॉलम वैल्यू। यहाँ पर आप LOC मेथड के साथ ऐसे यूज कर सकते हैं। जब आप LOC मेथड यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको नए कॉलम को ऐड करना है। When you are not using any method, this is the way, simply give the column name. And the third method is assign function. Assign function में simply give the new column name and the new column values in the form of array. Now let us see the output. Our data frame is here. The new column result is added. After that the new column student is added and the new column father is added. तीनों अलग अलग फंक्शन से ऐड किया है और तीनों चीजें हमारी ऐड हो चुकी हैं. Okay, so it is easy. I hope you are liking it, you are enjoying it. Next thing, how to delete a column. Here also you have two methods. One is called as del, which is a command, and another is a function or method of data frames. So suppose I have a data frame को print किया and del df grade कॉलम को सीधे हम डिलीट कर सकते हैं कॉलम को रिफर करके. मल्टीपल कॉलम्स हमें करने हैं तो लिस्ट के फॉर्म में इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने कॉलम्स आपको चाहिए वो इनपुट आप कर सकते हैं. सो डेल इज अ मेथड. याद रखिएगा, डेल जैसे आपका ये एक पर्टिकुलर कमांड होता है, ये कमांड है, नॉट अ मेथड ऑल्सो, इट इज अ कमांड. ओके. द सेकेंड वन इज ड्रॉप. ड्रॉपिंग अ कॉलम मीन्स डिलीटिंग अ कॉलम. तो ये हमारे एक डेटा फ्रेम का पर्टिकुलर कोड है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर हमने जो कमांड लिखा है import pandas as pd, what is happening, a data frame is created and I said drop grade access is equal to 1. ग्रेड हमारा एक्सेस इक्वल टू 1 में हमें डिलीट करना है. एक्सेस 1 हमारा क्या होता है, कॉलम. सो वेन एवर आई स्पेसिफाई द एक्सेस प्रॉपरली, क्या डिलीट होना है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा. सो राइट नाउ हियर द ग्रेड कॉलम हैज बीन डिलीटेड. व्हाट इज द कमांड, df dot drop. डॉट ऑपरेटर के बाद आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एट्रीब्यूट और मेथड ऑफ df. तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसको आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ मेथड ऑफ df, डेटा फ्रेम. डिलीटिंग रोज, अभी हमने कॉलम देखा था, अभी हम रोज को डिलीट करना देख रहे हैं. सो सी आई हैव वन सेम डेटा फ्रेम यहाँ पर है. df डॉट ड्रॉप इंडेक्स इज इक्वल टू एक्सेलेंट एंड वेरी गुड. इंडेक्स में से हमें एक्सेलेंट और वेरी गुड डिलीट करना है. इस तरीके से हमने इस कमांड को दिया और गुड एंड एवरेज इज लेफ्ट हियर. इंडेक्स, अदर्स, एक्सेलेंट एंड वेरी गुड आर डिलीटेड. तो डेल और ड्रॉप के बारे में ध्यान देंगे. ड्रॉप की हेल्प से हम बोथ कॉलम्स और रोज को डिलीट कर सकते हैं, while del operates only on the columns. Drop can operate on multiple items at a time, while del operates only one at a time. Drop can operate in place or return a copy. यानी उसी डेटा फ्रेम में आप चेंज करना चाहते हैं या एक सेपरेट डेटा फ्रेम में उस चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं. While del is always done in place means actual data frame में ही जो भी changes होने हैं वो हो जाते हैं. Now what is iteration? Iteration means repetition. तो iteration में हमारे पास दो commands हैं, iter rows and iter items. iter rows data frame में horizontal subset of rows को workout करता है और जो output है आपको show करता है. iter items डेटा फ्रेम को वर्टिकल सबसेट ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में देखता है और फिर आपको आउटपुट शो करता है. एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा. सी, आई हैव हियर अ डेटा फ्रेम विद इंडेक्स s1 s2 s3 एंड द कॉलम्स एज नेम, जेंडर एंड सो ऑन. तो हमारे डेटा फ्रेम का आउटपुट ऐसा आ रहा है s1 s2 s3 एंड द कॉलम नेम्स आर हियर. नाउ आई एम यूजिंग द iter rows. एंड एज आई सेड, iter rows क्या करेगा, हमारे लिए रोज को ला करके रिपीटेड फॉर्म में आउटपुट में देगा. एज आई सेड हियर, सबसेट ऑफ रोज, iter rows मीन्स सबसेट ऑफ रोज. तो वन रो एट अ टाइम ये रिफर करते हुए हमें वैल्यूज ला करके दे सकता है. इसके पास में दो एट्रीब्यूट्स इनबिल्ट आ जाते हैं. इट कैन
ऑलवेज एक्सेस टू द इंडेक्स, इटर रोज मेथड में इंडेक्स का एक्सेस कर सकते हैं हम, और एक पूरे रिकॉर्ड यानी रो का इंडेक्स, रो का एक्सेस कर सकते हैं। तो रो इंडेक्स को प्रिंट करवाएंगे, कंटेंट्स को प्रिंट करवाएंगे और रो। व्हाट विल हैपन, होगा क्या, एक एक करके S1 रो इंडेक्स में आएगा और ये कंप्लीट रो ROW नाम के वेरिएबल यानी कि रो वेरिएबल में आएगा। किस में आएगा, इस रो वेरिएबल में। फाइन, तो रो वेरिएबल में एक बार में पूरा एक रो आएगा, रो इंडेक्स में एक बार में पूरा एक इंडेक्स आएगा। तो रो इंडेक्स हमने प्रिंट करने के लिए कहा, तो इट विल प्रिंट ओनली द इंडेक्स। देन आई सेड प्रिंट कंटेंट्स, तो कंटेंट्स, एंड देन होल रो। तो होल रो को इसने कैसे प्रिंट किया, कॉलम्स के नाम लिख करके उनके सामने उस रो में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट की। एंड दिस विल बी रिपीटेड बिकॉज आई हैव यूज्ड अ फॉर लूप, इट विल बी रिपीटेड फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो ये तीनों रिकॉर्ड्स के लिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, सी आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जो कहना चाह रहे हैं। रो इंडेक्स क्या कर रहे हैं, वन एट अ टाइम रो को पिक कर रहा है, उसके इंडेक्स को हम रो इंडेक्स से रिफर करेंगे एक्सक्यूज मी, और उसके कॉलम वैल्यूज को हम रो, कंप्लीट रो एट अ टाइम से करेंगे एक्सक्यूज मी। देन अभी इटर आइटम्स देखते हैं हम। फॉर इटर आइटम्स आई एम कमिंग बैक टू अवर पीपीटी, एक्सक्यूज मी। नाउ इन इटर आइटम्स हमें एक बार में एक कॉलम मिलता है, तो कॉलम किस फॉर्म में आएगा, कॉलम इंडेक्स और कॉलम की कंप्लीट वैल्यूज। तो जैसे कॉलम इंडेक्स में हमारा पहला चीज जो आएगा उसमें एक एक करके दैट इज नेम, और उसके बाद हर कॉलम में जो भी रोज के वैल्यू हैं वो आपको आउटपुट में मिलेगा। सो 1 2 एंड 3, और फॉर लूप को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेम प्रोग्राम केवल इटर आइटम्स के लिए यूज किया है हमने। Because I am using for loop, it will be repeated for all the things, all the data values in the particular data frame. So this is also I think easy, not tough for you all. Then we have some functions, that is what, head and tail function, that is in your syllabus। इसके साथ एक और function add कर लिया है describe को। describe आपको info देता है, see the describe function। df1.describe बहुत सिंपल है लिखना, और ये क्या क्या डिस्क्रिप्शन देता है, ये हमारा डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में हमारे पास 3 कॉलम्स, 3 इंडिसेस और 3 सेट ऑफ वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम्स में। इसको प्रिंट नहीं किया है, यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा फ्रेम्स। तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इट इज अ डेटा फ्रेम। इंडेक्स में 3 एंट्री हैं, कहाँ से कहाँ तक, x y एंड z। डेटा में कॉलम्स में 3 कॉलम है, इट इज टेलिंग यू, and the name of columns and how many null or not null entries। तो तीनों not null entries हैं, it is telling you d type of the data frame and how much memory has been used। this is the complete description of the data frame। now head and tail functions आपने सीरीज में यूज किया है, याद है आपको। इन सीरीज हेड और टेल फंक्शन क्या कर रहा था, फर्स्ट रिकॉर्ड्स और लास्ट रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता है। बाय डिफॉल्ट कितने रिकॉर्ड्स, इफ यू डोंट गिव एनी नंबर, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, क्वेश्चन फॉर यू पीपल, कितने रिकॉर्ड्स, 5 रिकॉर्ड्स। ओके, सो 5 रिकॉर्ड्स को बाय डिफॉल्ट करता है, बट जब यहाँ आप नंबर दे देते हैं तो इट विल एक्सेस ओनली दोज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो हेड, दिस इज माई कंप्लीट डेटा फ्रेम। व्हेन आई से df1.head, first 2 records or rows from the data frame, x and y। When I say tail, it will give me last 2 records from the data frame in terms of rows, column नहीं, in terms of rows। ये rows या index पे work करता है, तो उतने number of indexes हमें देगा। ठीक है, so this is easy, remember by default this number is 5, यानी अगर आप कोई नंबर नहीं देते तो ये क्या बन जाता है, 5। How to rename the index और column names of the data frame। डेटा फ्रेम के कॉलम्स को आप कैसे रीनेम करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। आपके पास एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम बनाने के बाद में कैसा लगा, ये आउटपुट में इस तरीके से आ गया।
ABC कॉलम नेम है जो कि डिक्शनरी की थी. इंडेक्स आई हैव स्पेसिफाइड सेपरेटली 1, 2 एंड 3. ओके, तो ये इंडेक्स है. यूज द रीनेम मेथड. यूज द रीनेम मेथड. यहाँ पर हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, कॉलम एंड इंडेक्स. कॉलम्स में आप जिस की को या जिस लेबल को जो रीनेम करना चाहते हैं वो दे दीजिए डिक्शनरी फॉर्मेट में ही. जैसे एक डिक्शनरी इनपुट दिया है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिक्शनरी है. आई वॉन्ट दिस कैपिटल ए टू बी स्मॉल ए, कैपिटल सी टू बी स्मॉल सी. किस डेटा फ्रेम में? इस डेटा फ्रेम में. जैसे ही हमने इस रीनेम कमांड को रन किया, A and C has been renamed. कहाँ पर? Columns में, because I have written here columns. I want to change the names in the row. तब क्या करेंगे? Let us see. Index भी देंगे. तो केवल rows में change करना है तो use index, केवल column में change करना है तो use columns, और दोनों में करना है तो use columns and index. And see here, A to small a, it was already there, लेकिन अभी हम इस example को ध्यान में रखते हैं. So A to small a and 1, capital 1 to small 1. And see the changes here. This is here. What was our actual data frame? हमारा actual data frame ये है. तो ये रीनेमिंग जो है हमारी इन प्लेस नहीं हुई है. ये कहाँ हुई है? कॉपी हुई है. रीनेम होने के बाद में df new में कॉपी हुआ है. अगर हम यहाँ पर एक और ऑप्शन दे देते हैं साथ में कॉमा लगा करके, एंड आई कैन शो यू इन द नोटपैड. एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है किसी भी डेटा फ्रेम में, जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं वहां पर हमारे पास इन प्लेस एक ऑप्शन है. यहाँ पर अगर हम ट्रू लिखते हैं तो सारे के सारे चेंजेस जो है वो कहाँ जाएंगे? हमारे उसी डेटा फ्रेम में हो जाते हैं. और अगर हम इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स रखते हैं, इन प्लेस डेटा फ्रेम के किसी मेथड में अगर हम इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स रखते हैं तो जो चेंजेस है वो हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में नहीं होंगे. वो जिस डेटा फ्रेम को हम असाइन कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में, इन दिस केस वी आर असाइनिंग द वैल्यूज टू df new, तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे लेकिन इस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं हुए. सो रिमेंबर इन प्लेस ऑप्शन इफ यू वांट टू डू द चेंजेस इन द ओरिजिनल डेटा फ्रेम. Here I want to stop my slides today, and before completing the session want to have a small talk to you people. बहुत सारे मेथड्स हैं जो आपको दिखा दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बताए गए हैं. प्रैक्टिकल करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, केवल आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना है. whenever you are writing the practicals, the most important thing is that you do the practice by writing. आप देख रहे हैं तब बहुत इजी लगता है, जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो गलतियां होती हैं. उसका रीज़न ये है कि आप लिख कर और सिस्टम में ट्राई करके प्रैक्टिस नहीं करते. सो फॉर दैट आई वांट टू टेल यू, फॉर माय स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग बैक टू माय नोटपैड. और ध्यान दीजिए, इफ़ यू हैव अ सिस्टम, वेल एंड गुड. आपके पास अगर सिस्टम है स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी बात है. आप IDLE के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं. देन यू हैव अदर थिंग्स लाइक एनाकोंडा भी आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं. स्पाइडर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव अ सिस्टम एट होम, डोंट वरी, यू हैव अ स्मार्टफोन. पाइड्रॉइड ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आप पूरे का पूरा पाइथन फुल फंक्शनैलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग योर प्रैक्टिस बाय राइटिंग द प्रैक्टिकल वर्क ऑल्सो. ठीक है. बिकॉज जब तक आप लिखेंगे नहीं कहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, कहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स लगाने हैं, कहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स भी होने हैं, कहाँ पर आपके पास में केवल इस पर्टिकुलर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट होना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं आती. दूसरा, कब आपको स्मॉल लिखना है, कब आपको कैपिटल लिखना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे. सो आई वॉन्ट टू से अगेन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करनी है. इस कोर्स मटेरियल को वीडियो के साथ इस PPT को भी हम लोग जल्दी ही जबलपुर की अपनी ब्लॉग साइट में अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकें. मोर ओवर, इन स्लाइड्स में हमने पढ़ाने के लिए बहुत सारा मटेरियल हमारे ही KB के वेरी रिस्पेक्टेबल टीचर PGT CS
श्री अशोक सेन गुप्त जी हैं, अशोक सेन गुप्त सर हैं, उनकी स्टडी मटेरियल को हमने पांडास पढ़ाने के लिए यूज किया है. I will upload there also with the courtesy. I want you all people to refer them. For all your doubts, आप आराम से जब चाहे तब क्वेरी के फॉर्म में वीडियो में भी डाल सकते हैं, टीचर्स को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं. सो प्लीज डू नॉट स्टॉप लर्निंग, बिकॉज व्हेन आई से लर्निंग लर्निंग इज अ जर्नी. इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस जर्नी है. और अभी आज की कंडीशन में केवल इसी तरह से हम लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग. जब तक हम मोटिवेटेड हैं लर्निंग के लिए, वी विल बी डूइंग इट. द डे वी विल स्टॉप, आप रुक जाएंगे या हम रुक जाएंगे तो लर्निंग रुक जाएगी. सो वी डोंट हैव टू स्टॉप द लर्निंग. विश यू ऑल अ वेरी गुड डे. Keep on doing the studies and keep on watching the YouTube videos for the review also. Stay home, stay safe, study well and be happy always. Okay? So here I like to say thank you. Wish you a very good day. Bye bye.